Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing good. So, students, how your study is going on? I hope you all are enjoying study at home. So, students, today we are going to study English chapter number 7 and chapter name is A Visit to Cambridge by Firdaus Kanga. So, student, let me know one thing. do you do you know what is Cambridge? Have you heard this word before? Okay, so let's talk about Cambridge. Cambridge is a city which is in England and also is the best known for its university. It is made up of 31 colleges. Okay, so Cambridge एक प्लेस है जो कि इंग्लैंड में है और ये सबसे ज़्यादा फेमस इसकी यूनिवर्सिटी को लेकर है जो कि 31 कॉलेजेस को लेके बना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट आवर चैप्टर. A Visit to Cambridge is written by Firdaus Kanga. So let's see some introduction part of this chapter. And also students, we are going to study only summary of this chapter which help you to understand what is the story. Okay, so let's move forward. This story have two main characters. First one, Firdaus Kanga, which is our writer, and second is Stephen Hawking. Okay, so let's move forward. First, we will see Stephen Hawking. Stephen Hawking is one of the greatest scientists of our time. He suffered from paralysis that confines him to wheelchair and allows him to speak only punching buttons on computer while speak for him in machine likewise. He wrote a book named A Brief History of Time. ओके, सो जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो एक साइंटिस्ट है जो कि पैरालिसिस है. ठीक है, जो उनकी बॉडी है वो पूरी पैरालाइज्ड है. एक डिजेबल पर्सन है जो कि व्हील चेयर पे ही रहते हैं और व्हील चेयर पे उनकी एक कंप्यूटर स्क्रीन है. ठीक है, जिसपे वो टाइप करते हैं और बात करते हैं. वो बोल भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, तो कम्युनिकेट के लिए वो यूज़ करते हैं. ओके, एंड ही वॉज अ राइटर. वो एक राइटर भी है जिन्होंने एक बुक लिखी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल सी Firdaus Kanga. Firdaus Kanga is a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones that tended to break easily. When he was a child, like Hawkins, Kanga moves around in a wheelchair. He wants to meet the most brilliant and paralyzed scientist Stephen Hawking, the author of the biggest based सोल्ड बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. सो कंगा जो है वो एक राइटर है. ठीक है, एक जर्नलिस्ट है जो कि मुंबई में रहते हैं और वहीं पे काम करते हैं. और जब भी जो कंगा की बोन्स है ना वो बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाती है. ठीक है, तो इसके लिए वो क्या व्हील चेयर पे ही रहते हैं. वो व्हील चेयर पे ही रहते हैं, कहीं आते जाते हैं व्हील चेयर से, सारा काम व्हील चेयर पे ही करते हैं. ओके, बट ये स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहते थे. ये चाहते थे स्टीफन हॉकिंग से मिलना, उनसे बात करना. ठीक है, तो जो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम है ये अपने ज़माने की बहुत ज़्यादा बिकने वाली बुक थी जो कि स्टीफन हॉकिंग ने लिखा है. ठीक है, लेट मूव फॉरवर्ड. This is a cover page of A Brief History of Time. You can see. Now let's start our story. Early England was important to the author only because there was Cambridge. Now it had a great appeal for him. He had met Stephen Hawking there during a walking tour. Stephen Hawking is a disabled person. He is the successor of Isaac Newton and
has his chair at the university. He is a brilliant astrophysicist. He is also the author of A Brief History of Time. It is the biggest bestseller of this time, of his time. ओके, सो यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑथर है उनके लिए इंग्लैंड इम्पॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज ऑफ कैम्ब्रिज। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये वहाँ पे किससे मिले, वो वहाँ गए थे तो ये किससे मिले थे? स्टीफन हॉकिंग से मिले थे। ठीक है, ये टूर पे गए थे, वॉकिंग टूर पे गए थे। सो वहाँ पे ये स्टीफन हॉकिंग से मिले थे, तो इसके लिए वो इंग्लैंड इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो स्टीफन हॉकिंग है वो अभी हमने पढ़ा कि वो डिजेबल पर्सन है। ठीक है, बट वो बट वो सक्सेसर है किसके? इसैक के। ठीक है, इजैक के सक्सेसर हैं। एंड एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के माने जाने प्रोफेसर है। और क्या है? और एक एस्ट्रोफिजिस्ट है। एस्ट्रोफिजिस्ट मीन्स जो तारों के बारे में जानता हो। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज रखता हो, उसको एस्ट्रोफिजिस्ट कहते हैं। और फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जो अपने टाइम की बहुत ज़्यादा बिकने वाली बुक थी। बुक का नाम क्या था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। Let's move forward. The tour was over. The writer phoned Stephen Hawking's house. Stephen's assistant attended the telephone call. He told the assistant that he had come from India. He added that he was on a wheelchair. He mentioned that he wanted to write a book about his travels in Britain. Then he expressed his desire to see Stephen Hawking. The time for his meeting, the professor was fixed. It was from 3:30 to 4 o'clock. The interview began on time. सो जब इनका टूर ओवर हो गया तो इन्होंने स्टीफन हॉकिंस के घर पे फ़ोन किया एंड उनके असिस्टेंट ने कॉल उठाया तो उन्होंने उसको बोला कि वो इंडिया से आए हैं और वो व्हील चेयर पे है। और फिर उन्होंने बताया कि वो ब्रिटेन के ट्रैवल को लेके एक बुक लिखने वाले हैं। फिर उन्होंने बताया कि वो स्टीफन हॉकिंग से मिलना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपना डिज़ायर एक्सप्रेस किया कि वो मिलना चाहते हैं। फिर स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, टाइम फिक्स किया जो कि सिर्फ आधे घंटे का था। ठीक है, 3:30 टू 4 PM का था। तो उन्होंने ये टाइम फिक्स किया सिर्फ आधे घंटे का एंड देन इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। The writer felt that the disabled got fed up with people asking them to be brave. They got stronger on seeing somebody like them achieving something huge. तो राइटर बोलते हैं प्रोफेसर से कि लोग जब भी किसी डिजेबल को देखते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि आप ब्रेव बनो। ठीक है, ब्रेव बनो। ठीक है, तो आपको भी ऐसा लोगों ने बोला होगा, उनका पूछना था। तो और जो डिजेबल पर्सन होता है, ठीक है, वो दूसरे डिजेबल पर्सन को देख के, मतलब अगर कोई डिजेबल पर्सन है वो बहुत सक्सेसफुल है, ठीक है, तो उसको देख के वो खुद उनसे इंस्पायर होता है, दूसरा डिजेबल पर्सन, और चाहता है कि वो भी ऐसा कुछ अचीव करे। ठीक है, क्योंकि जो स्टीफन हॉकिंग्स थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत नॉलेजेबल पर्सन थे। तो इसलिए उन्होंने ये सवाल किया उनसे। तो स्टीफन हॉकिंस का रिप्लाई आया। द कंप्यूटर वॉइस रिप्लाइड दैट प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स हैड नॉट एवर बीन ब्रीफ, ही हैड नो चॉइस इन इट। तो कंप्यूटर ने रिप्लाई किया, मतलब स्टीफन हॉकिंग ने बोला कि वो ब्रेव नहीं है, वो ब्रेव नहीं है, बट उनके पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। उनके पास ब्रेव बनने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। So next question is, the writer told him that most people think that the disabled people are chronically unhappy. He asked Hawking if he found his
this amusing, the wise replied that he found it amusing when people patronized him. द राइटर्स नेक्स्ट ओके सो अभी यहाँ पे उनका क्वेश्चन था कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो सोचते हैं कि जो डिजेबल पर्सन है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या अनहैप्पी ही रहते हैं, हमेशा सैड ही रहते हैं। तो ये जो अजीब सा क्या बोल सकते हैं परसेप्शन है लोगों का डिजेबल के प्रति, तो ये आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो उन्होंने बोला कि उन्हें अजीब तब लगता है जब लोग उन्हें बोलते हैं, जब लोग उन्हें बेचारा समझते हैं, ठीक है, जब लोग उनके काम को मतलब उनके काम को नहीं देखते, बोलते अरे ये डिजेबल होके भी इसने ऐसा किया है, मतलब बोलते हैं ना हेल्पलेस समझते हैं, ठीक है, उनके काम की सराहना करते हैं बट क्या पुअर पीपल के अनुसार, ठीक है, लाइक कि हाँ डिजेबल है बट फिर भी इसने ऐसा काम किया है, ठीक है, तो इस टाइप का जो सेंस है, तो वो बोलते हैं जब लोग इस तरह से बातें करते हैं तब उन्हें ज़्यादा अजीब लगता है। द राइटर्स नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट हिमसेल्फ। ही आस्क्ड whether he felt annoyed when people liked him, disturbed him. ओके सो अभी राइटर का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसके लिए था, ठीक है, वो पूछता है कि जब मेरी तरह लोग आके आपको डिस्टर्ब करते हैं तो फिर आपको कैसा फील होता है, मतलब आपको कैसा लगता है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपको अनॉयड लगता है, ठीक है, आप अनॉयड फील करते हो। तो आंसर, द आंसर फ्लेश्ड एस Hawkins smiled after giving this answer. Professor Hawkins appeared to the writer as one of the most beautiful men in the world. However, the writer was shaken by his first glimpse. He seemed only a skeleton then. ओके सो यहाँ पे हॉकिंग का रिप्लाई आता है कि यस, और फिर वो स्माइल करते हैं, ये आंसर देने के बाद वो स्माइल करते हैं, वो एक मजाक के टोन में होता है, ठीक है, वो मजाक करते रहते हैं। फिर जो हॉकिंग्स है वो राइटर्स को कैसे दिखते हैं, द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं उस टाइम पे जब वो स्माइल करते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि जब भी उन्होंने जब ये राइटर ने हॉकिंस को पहली बार देखा तो मतलब उसको कैसे लगे थे कि जैसे सिर्फ कोई स्केलेटन हो, ठीक है, इंसान नहीं हो, कोई स्केलेटन हो, और अभी उन्हें कैसा लग रहा है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत यही है, ठीक है। Let's move forward. The writer asked Hawking's opinion about the best, best thing about being disabled. The reply was negative. The writer next question was if his did not help him discover great kindness in the world. The voice agreed fully with the writer like others. The writer also got highly inspired by the answer. This advice did not appeal of console Hawkins. The question made the writer feel sorry. Others' admiration of Hawkins' living could not console him. Then the writer asked him about his advice of the disabled people. ओके सो फिर राइटर उनसे पूछता है कि आपको आप डिजेबल मतलब आपका ओपिनियन क्या है एक डिजेबल पर्सन के लिए, मतलब आप एक डिजेबल पर्सन हो तो इसमें आपका कोई ऐसा चीज़ है जो डिजेबल के लिए बेस्ट थिंग हो, ठीक है, उसके लिए आपका ओपिनियन क्या है। तो उनका जो रिप्लाई आता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि वो अपने से खुश नहीं होते हैं, वो इतने बड़े इतने सक्सेसफुल होते हैं बट फिर भी वो खुद से खुश नहीं होते बिकॉज ही वॉज डिजेबल, ठीक है। फिर उसको क्या लगता है जो उसके उनके जो आंसर्स होते हैं, ठीक है, जब वो रिप्लाई करते हैं तो
राइटर को ऐसा लगा कि वो उन्हें मतलब तकलीफ हो रही है उससे बात करने में, ठीक है, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते, वो बहुत परिश्रम के बाद अपने हाथों को मूव करते हैं टाइप करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए वो उसने सोचा कि इंटरव्यू का जो आइडिया था ना वो अच्छा नहीं था, ये इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस वो सोचता है कि अभी चलो अच्छा कुछ नहीं है, अभी हम इसे थोड़ा लास्ट क्वेश्चन पूछ के और ख़त्म कर देते हैं, वैसे भी टाइम होने ही वाला है। फिर उस वो पूछता है कि आप किसी डिजेबल पर्सन को क्या एडवाइस करना चाहोगे, ठीक है। सो आंसर है सॉरी, तो उनका एडवाइस था द वॉइस एडवाइज द डिजेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वॉट दे आर गुड, they should try nothing beyond it, they must not be ever enthusiastic. Then the writer saw Hawking's big garden. At last he willed out. The writer found his journey successful and inspiring. ओके, सो अभी उन्होंने डिजेबल को एडवाइस क्या करा है कि वो जिसमें अच्छे हैं, जिस काम में अच्छे हैं ना, वो सिर्फ उस पर ध्यान दे, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें पे ध्यान मत दे। जैसे कि अभी मान लो हमने ओलंपिक कर लिया है, ठीक है, ओलंपिक प्लान किया है, तो एक डिजेबल पर्सन ओलंपिक में दौड़ सकता है, ओलंपिक में पार्ट कर सकता है, नहीं ना। तो इसके लिए ये आलतू फालतू जो चीज़ें हैं ना उस पर ध्यान न देते हुए वो किस में अच्छा है, उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बेस्ट है, उस पर ध्यान दे, ठीक है। और फिर राइटर को उन्होंने अपना गार्डन दिखाया और लास्ट में वो चले गए। सो इस दौरान जो राइटर थे, ठीक है, तो उन्हें जो उनका जर्नी लगा ना वो सक्सेसफुल लगा और बहुत इंस्पायरिंग लगा, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला स्टीफन हॉकिंग से, और उन्हें लगा कि उनकी जो जर्नी है ना वो मतलब एकदम सक्सेसफुल रह गई, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम पैसा वसूल, तो उस तरह से उन्हें लगा कि एकदम मतलब उन्हें बहुत इंस्पायरिंग भी लगा और बहुत सक्सेसफुल भी उनकी जर्नी रही, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। सो हियर some difficult words with meaning you can write in your notebook, not can, you have to write in your notebook. Here some question answer is given, so you have to do right. Here your third question and your fourth question and your first question. Your first question has two parts, okay, and answer is given below. Your second question is there, your third question is there, एंड हमने ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है सिर्फ वही डिस्कस करे हैं। व्हेन यू विल कम स्कूल देन वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, ओके। दिस ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो सिर्फ वही हमने लिए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। ये आपका 6 क्वेश्चन है एंड नाउ दिस इज़ योर फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। तो जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो आपका आंसर है, सो यू सपोज टू डू राइट इन योर नोटबुक, ओके। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।